अफ्रीका इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है मैडम अफ्रीका। दिस इज ट्रू, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ। चर्चिल कहता तो था कि फकीर है, नंगा फकीर है, पर इतना जो है वो इतना फकीरी वाली हालात है। तो न राजा न रानी न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रिहानी और आज मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनका नाम है नरेश शर्मा। नरेश शर्मा जी इंटरनेशनल काउंसलर हैं और रिक्रूटर हैं। करीबन 40 से ज़्यादा बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर कर चुके हैं। 25 से 30 मुल्क अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ये विजिट कर चुके हैं। ये वहाँ पे जाते हैं, बारीकियों से चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और आज इनके तजुर्बे को इनके मुंह से सुनते हैं। नमस्कार नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है ऑन पॉइंट भारत पे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। नरेश जी, मेरा आपसे सबसे पहले सवाल ये कि जब साउथ अफ्रीका की बात आती है तो पहला किसी भी इंडियन के मन में, भारतीय के मन में सवाल आता है, वो है गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो क्या वहाँ पे रेलेवेंस है आज भी, उतनी ही लोग मानते हैं गांधी को? क्या देखा आपने? मैडम, महात्मा गांधी इज known as the father of the nation, जी and he went for his first assignment जो law का था, as you know he was a law graduate from London, जी and he got his first assignment to file a case or fight a case, जी and he went to South Africa, जी। and during one of his visits सर मैं यहाँ पूछूंगी in South कि Africa, जब ये केस लड़ने गए तो वो किसी इंडियन का केस था कि किसी अफ्रीकन का? yeah, it was related to one of the Gujarati firm who was residing in South Africa, जी and he went there to represent that firm. And during one of his visit, because he was a good lawyer, and he was traveling in first class in Pretoria, जी and that time, because it was a British colony, even South Africa was a British गुलाम colony. थे। Yes. जी So they said, that only the English people they are allowed to travel first class. जी Despite of him having a ticket with him, so he was forced to step down at Pretoria station. जी And most of us, nowadays, government of South Africa has made a memorial on that station where Gandhi was dropped down, and from where he got that inspiration, जी that if this is the situation with me, who is traveling in first class, so imagine the situation of the people or the plight of the people who are staying in the remote villages. And I am talking of the India, which is undivided India, right from Karachi to Dhaka. It is India. There was no Pakistan, there was no Bangladesh that time. right right। So he got that inspiration from there. He came back to India, and then rest is history. जी, मेरा सवाल आपसे ये है अगला, इज गांधी स्टिल अ फिगर रिस्पेक्टेड इन अफ्रीका? वहाँ के नौजवान गांधी को कैसे देखते हैं? Not only in Africa, madam, Gandhi is respected and very respected figure all over the world. जी You go to any city in the world, जी जी you will find maybe a Mahatma Gandhi road जी or a Mahatma Gandhi statue. Right. And because he was the epitome of non-violence. यस Nowadays, it's very rare to practice non-violence. Yes. Government is suppressing you. They are not doing the right things to you, and then you start, at some point of time, आपको लगता है कि no, I have to do something, कुछ aggression violent दिखाया जाए, aggression, but उग्र स्वभाव दिखाना पड़ जाता है it कई बार। was very difficult, but Mahatma Gandhi taught the world, and there were so many leaders all over the world, whether it is Martin Luther King Jr., whether it is Nelson Mandela. Nelson Mandela is also known as the Gandhi of Africa. गांधी ऑफ अफ्रीका, जी 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 बिल्कुल। So he was, the great son of Africa, Nelson Nelson Mandela, Mandela, and he was in jail for 27 long years. Yes. And after 27 years, when he came out, he became the president of South Africa. And when we talk about Africa, we only talk about, South Africa. Africa is vast, madam. African continent is a mixture of 54. सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अफ्रीका को इंडियंस जो हैं वो मानते हैं कि वहाँ लोग लोगों को मार देते हैं, काट देते हैं, खा जाते हैं, पत्ते लपेट के घूम रहे हैं,
जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। असल में अफ्रीका क्या है? व्हाट इज अफ्रीका? अफ्रीका इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है मैडम अफ्रीका, एंड दे हैव यू नो लाइक शी शोर्स एज वेल, ब्यूटीफुल यू नो व्हाट यू से, लोकल्स, टूरिस्ट यस, स्पॉट्स। विक्टोरिया फॉल्स है, फिर जो है वो बीचेस हैं, फिर जो है वो पहाड़ हैं, जी। यू नो, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जी। बिकॉज एक और डिफरेंस ये है कि पॉपुलेशन बहुत कम है। जी। अगर आप पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी 54 कंट्रीज आती हैं पूरे जी, जी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज स्टिल लेस देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। That सो is यू कैन amazing. इमेजिन इन इट, ये साइज में जो है वो 10 टाइम्स होगा या 15 टाइम्स होगा, बट पॉपुलेशन में जो है वो स्टिल इंडियन पॉपुलेशन से कम है, एंड पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल, जी। एंड अग्रेशन होता है उनमें, मारने काटने वाला जैसे? नहीं, एक और बहुत ही खूबसूरत चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, जी। बिकॉज अफ्रीका जो है वो एक मैट्रियर्कल सोसाइटी है, जी, बिल्कुल मातृ प्रधान जी, सोसाइटी स्त्री प्रधान, है, जी। जी, स्त्री प्रधान कंट्री है, जी। स्त्री प्रधान पूरा कॉन्टिनेंट है। जी। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो वहाँ पे हैं, दे आर बीइंग ओन्ड बाय Women. लेडीज, जी। एंड in our country, you know, we give dowry in marriages जी 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 to the boy side. राइट। In Africa, if you want to get married, तो आप डाउरी देते हैं गर्ल साइड को। मीन लड़कियों को दहेज दिया जा रहा जी, है, जी, जी, लड़के वाले लड़की वालों को दहेज जी, दे रहे हैं। इसको दे कॉल इट लबोला। लबोला। जी। जी, जो लड़के देते हैं सपोज लड़कियों को। कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है अफ्रीका में, तो लड़के की फैमिली लड़की के घर जाती है, जी। एंड लड़के के जो घर वाले हैं, दे ऑफर के भाई आपकी लड़की के लिए, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू नो द क्वालिफिकेशन, द स्टेचर ऑफ दैट गर्ल, एंड इट गोज फ्रॉम लाइक इवन के काउज देने का रिवाज है उनकी शादियों में, कि तो भारत लड़की में अगर भी अच्छी होता है तो गाय दे दो, 10 गाय, और अब स्टेचर के हिसाब से, Right. कि जैसे आई रिमेम्बर कि रॉबर्ट मुगाबे की जी, जी। बेटी की शादी थी, तो उन्होंने कम से कम भी कोई 400 गाय दहेज मतलब में। दहेज में दी थी अपनी बेटी के लिए। वाओ। लबोला, दे कॉल इट लबोला। लबोला, ओके। लबोला। सर एक चीज बताइए, अफ्रीकन बच्चे इंडिया में पढ़ने क्यों आते हैं? इंडिया के बच्चे कनाडा भाग रहे हैं और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बच्चे इंडिया में आ रहे हैं, ये क्या है? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज कम है मैडम। जी। अफ्रीका अभी डेवलपमेंट उतना नहीं है, बहुत खूबसूरत है, बट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा नहीं है। जी। यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जी। बट दे हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी। जी। वो जैसे सपोज करिए कोई यूनिवर्सिटी है, वो 6000 बच्चे ले सकती है, राइट। बच्चे हो रहे हैं कम से कम भी 6 लाख, तो 60,000 के करीब वहाँ पे आप उन यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जी। वो चले जा रहे हैं, लोकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। बाकी के बच्चे जो हैं उनके लिए ऑप्शन है कि दे हैव टू गो अब्रॉड। एंड व्हाई इंडिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, कि बिकॉज इंडियन एजुकेशन इज रिगार्डेड ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउअडेज। जी। आप अगर देखेंगे फॉर्चून 500 कंपनीज जो वर्ल्ड की हैं, जी। आई थिंक ऑलमोस्ट सभी टॉप के सीईओज जो हैं, दे ऑल आर फ्रॉम इंडिया। चाहे वो सुंदर पिचाई हैं गूगल के, चाहे वो इंदिरा नूई हैं पेप्सी की, चाहे वो सत्या नडेला हैं यू नो माइक्रोसॉफ्ट में, या फिर जो है वो मास्टर कार्ड के सीईओ। ब्रांड इंडिया है इसलिए इंडिया आ रहे हैं। जी 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 जी, बिकॉज एंड इंडिया इज ऑल्सो हब फॉर यू नो लाइक दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। जी। तो उसके लिए भी लोगों को ये लगता है कि एजुकेशन, एंड दिस इज ट्रू, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ। ये इट प्रिपेयर्स, इट नॉट ओनली प्रिपेयर यू फॉर लिविंग, जी, इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ एज वेल। बहुत बड़ा स्टेटमेंट। कुछ लोग जहां इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कोसते हैं, ये करीबन 25 से 30 मुल्क अफ्रीकन घूम आए हैं, और ये यहाँ पे नरेश सर बोल रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई बात है। यहाँ हमें भी रुक के थोड़ा पॉज करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। सर मेरा अगला सवाल आपसे, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि गांधी जी इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ नेशन, लेकिन अगर कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करें तो नौजवान जो है वो गांधी जी को गालियाँ ही दे रहे हैं, उनको देश का गद्दार कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टीशन करवा दी, और मीन्स एक तरह से उनके जो रोल को है ड्वार्फ कर दिया गया है। तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है? इंडिया में इतना क्यों रिगार्ड नहीं है, इतना क्यों पहचान नहीं है, वो कमी क्यों होती जा रही है?
नहीं, ये क्या है मैडम, एक एरा की बात रहती है। जी। इस एरा में क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं ये टेक्नोलॉजी और व्हाट्सएप का ज़माना जी, है, व्हाट्सएप तो जो यूनिवर्सिटी। चीज़ें व्हाट्सएप पे लोग देखते हैं, बिकॉज जी। पीपल दे आर नॉट गोइंग थ्रू द बुक्स। आप राइट। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में गांधी जी के ऊपर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स रियली? बनी हुई हैं। आप हमारा, चाहे हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात कर लें, पूरा गांधीयन थॉट्स का एक डिपार्टमेंट है, जो बैचलर डिग्री से लेके मास्टर डिग्री से लेके पीएचडी तक के प्रोग्राम वहाँ पे चल रहे हैं गांधीयन थॉट्स के ऊपर, नॉन वायलेंस के नॉन ऊपर, वायलेंस पीस के थियरी ऊपर। के इवन ऊपर। नॉट ओनली इन आवर इंडियन यूनिवर्सिटीज, इन जेएनयू, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन मुंबई यूनिवर्सिटी, इन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस दुनिया भर में महात्मा गांधी जी के नाम पे हैं। एंड इन इवन इन अमेरिका गांधी जी का तो रेलेवेंस, हम रहे ना रहे, वो तो रेलेवेंस रहेगा। वो खत्म नहीं होने जी, वाला। वो तो, वो आप मेरे बोलने से, आपके बोलने से, गांधी जी मेरे बोलने से रेलेवेंट नहीं है, वो रेलेवेंट हैं। वो मेरे से पहले भी रेलेवेंट थे। आप, अगर मैं आपको आज की डेट में बताऊं, चाहे किसी की भी सरकार हो, आज की डेट में आपके घर में राशन आ रहा है तो आप गांधी को ट्रांजैक्ट करते हैं, तभी तभी आ रहा है राशन। जी, राइट। ठीक। ये तो आपने बड़ी प्रैक्टिकल बात की। राइट, या जी जी सर, बिल्कुल। क्या रीजन है कि कोई और जो लीडर है वो अभी तक नोट पे नहीं छप पाया? क्या रीजन है? नहीं, इसका तो दिस इज वेरी वास्ट क्वेश्चन मैडम। दिस इज समथिंग विच गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड। उसमें तो तो हमारा, सवाल यही है कि सरकारें भी क्यों नहीं डिसाइड बिकॉज कर पाई? गांधी जी इज रेलेवेंट अक्रॉस द पार्टी लाइन। ओके। ऐसा नहीं है, सपोज करिए कि वो जब देश आज़ाद हुआ तो एक ही पार्टी बड़ी रेलेवेंट थी, तो वो लोग, उनको लगता है कि वो गांधी जी के ऊपर हमारा एकाधिकार है। जी। अभी जो पार्टी पावर में है, वो तो उनका जो है वो उनके लिए भी गांधी जी रेलेवेंट हैं। एंड माननीय है, अवर जो सामान्य है। जो हमारे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, ही आल्सो कम फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी, राइट। एंड आप देखते हैं टाइम एंड अगेन जो है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही हैज़ आल्सो प्रमोटिंग, इवन अभी गांधी जी का जो है वो 150th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, और देश का जो भी हम स्वच्छ भारत मिशन का जो एक कैंपेन चल रहा है, दैट इज आल्सो इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी। बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, चाहे वो और कई तरह की अर्बन हाउसिंग की स्कीम्स हैं, या रूरल मींस हाउसिंग। आपको लगता है कि हर जगह उनको पहचान मिल रही है? ये है, पहले से ही पहचान है, मतलब अभी कम नहीं हुई है उनका। जी जी जो जी, शाइन है वो कोई नहीं, नो वन कैन स्टील हिज थंडर। नो, यू सी मैडम, हर एक पर्सनैलिटी में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ गंदी भी, वो भी हमारी तरह एक इंसान थे। व्हेन ही पास्ड अवे, ऑन दैट डे, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक स्टेटमेंट कही थी कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू बिलीव दैट सच अ पर्सन वाज लिविंग ऑन दिस प्लेनेट। एंड यू सी 1923 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब गांधी जी इंग्लैंड गए, जी। तो he was a graduate from लंदन। वो लंदन से पढ़ के आए थे, बट जब उनके जो, आप देखिए, जब भी आपको कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई, मान लीजिए कोई गवर्नर या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाता है, तो आपको प्रोटोकॉल दिया जाता है कि सर कल आपने ग्रे कलर की शर्ट पहन के आनी है, ये पहन के आना है। व्हेन गांधी जी went to Buckingham Palace, जी। so he went simple in dhoti. There was nothing on his upper front of the Chest, body, कुछ भी नहीं पहना था, and जी। it was in London, जहाँ पे टेम्परेचर कितना वो रहता है। तो जो उनके जो ऑफिस के लोग थे, रानी साहिबा के, जी जी क्वीन जी, एलिजाबेथ के, दे वेंट के सर वो तो कपड़े ही पहन के नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि जॉर्ज पंचम द्वितीय, तो उन्होंने बोला कि यार, चर्चिल कहता तो था कि फकीर है, नंगा फकीर है, पर इतना जो है वो इतना फकीरी वाली हालात है। तो देन ही आस्क्ड कि ओके, बुलाओ, चलो देखते हैं क्या कहने के लिए मींस आए हैं। प्रोटोकॉल तोड़ के उनसे मिला गया। जी जी जी, एंड जी। यू सी, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इट वाज नॉट द यूके ऑफ टुडेज एरा। आज तो 3-4 कंट्रीज हैं यूके में। जी जी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1920s, व्हेन Monarchy दुनिया was की solid, आधी से ज्यादा जी, दुनिया के ऊपर हुकूमत ब्रिटानिया थी। की हुकूमत जी, जी, थी। जी, जी। और उनके राजा के सामने आप एक ऐसी स्थिति में चले जाएं, तो उन्होंने धोती पूछा कि पहनकर। मिस्टर गांधी, वेयर आर योर क्लोथ्स? तो ही सेड कि सर, फॉरगेट अबाउट माय क्लोथ्स, नो, माय होल कंट्री इज विदाउट क्लोथ्स,
the common people in my country lives like this. That's why I am here to show you the plight Of my India, country. yes. So that's how it is. सर एक आखिरी सवाल जाते जाते, अफ्रीका आपने घूम लिया, पूरा कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, हिंदुस्तानी आप हैं और अलग अलग कोनों कोनों में आप घूम चुके हैं, आपको मेजर फ़र्क कहाँ लगता है? हम हिंदुस्तानी, भारतीय, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से क्या सीख सकते हैं? The biggest aspect जो हम सीख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, जी, that जी। is the respect of women. जी, बहुत बड़ी बात। एंड जो हमारे यहाँ पे आप देखते हैं फीमेल फिटिसाइड जी, है, जी। आई हैव नेवर सीन यू नो लाइक कि वहाँ वहाँ ऐसा पे कुछ कोई नहीं ऐसी है। चीज आपको देखने को जी, मिली जी। है. पीपल आर सो मच ओपन अबाउट रिलेशनशिप्स एंड अदर थिंग्स एज वेल, एंड यू नो लाइक द गर्ल्स आर रिस्पेक्टेड अलॉट. वाओ, इट्स समथिंग जी ब्यूटीफुल। जी. बहुत बड़ी एंड बात। जो हम बात हमारे कल्चर में जो हम बात करते हैं कि जी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, तो वो एक्चुअली में हम बात तो करते हैं कई जगह के ऊपर, हम उसको जो है वो लेके चलते भी हैं, बट जी नहीं पा रहे उस चीज को। जो रेलेवेंस हमने देखा है कि देखिए जब शादियां हो रही जी। हैं, अब आप हमारी कंट्री में आप देखते हैं बहुत सारे पेरेंट्स जो इस चीज को लेके परेशान रहते हैं कि भाई अब बेटी की शादी करनी है, इतना पैसा जोड़ना है, ये करना दहेज है, बट खर्चा and all. देयर इज क्वाइट अपोजिट इन अफ्रीका. Wow, it's पीपल something दे आर गोइंग टू द गर्ल्स हाउसेज एंड वहां पे वो जो गर्ल्स के पेरेंट्स हैं, दे आर टेलिंग देम कि हमारे को क्या चाहिए, कितनी if you want our daughter in marriage. So that's a very beautiful thing. Or it's a very beautiful continent, and I invite all the African parents, students through this discussion, those who are watching, that study in India is a very beautiful thing, and I am representing one of the university, and all of you are welcome in our country for your higher education. To all the wonderful people over there in Africa, thank you so much for bestowing your love, not just only on Gandhi, but on India. Thank you for choosing India as your destination for education. And thank you for being such a wonderful race. We are proud to have you around us. और मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं तेरी मेरी कहानी को, मैं उसी तरह से आपके लिए बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ 7 समंदर पार से भी अगर लानी पड़ी तो ज़रूर लेके आऊँगी. उम्मीद है नरेश शर्मा जी के साथ आज की कहानी दिल को छू जाएगी. धन्यवाद. Thank you, ma'am.